Hello students, how are you all? I hope you all are good. Now students, today we will do your exercise 8.3, your chapter number 8, and that is comparing quantities. So before starting this video, you have to check your all other previous videos and all the links are available in the description box. So you can check your description box also. Okay, so let's start from the question number 1, and your question number 1 is, tell what is the profit or loss in the following transaction. You have to check that what is the profit or loss, and after that you have to check the profit and loss percentage also. So here you have some condition, and in each condition you have to check that it's profit or loss, and after that you have to find out the profit percentage and loss percentage also. So let's start from the part A, and part A is gardening shares bought for rupees 250 and sold for 325. Okay, जो आपके shares हैं वो 250 के खरीदे जाते हैं और उनको सोल्ड किया जाता है 325 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस, आपका कॉस्ट प्राइस है 250 एंड सेलिंग प्राइस है 325. सो स्टूडेंट्स, योर कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस. आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है. इट मीन्स आपने चीज़ खरीदी है कम में और बेची है ज़्यादा में. क्लियर? सो आपको क्या होगा? ऑब्वियसली दैट्स योर प्रॉफिट. सो योर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. आपने चीज़ जितने में बेची है उसमें से अगर आप माइनस कर दें आपने जितने में खरीदी थी, तो जितना अमाउंट बचेगा वो होगा आपका प्रॉफिट. तो यहाँ पे आपने चीज़ सेल की है 325 में, सो दैट इज़ योर 325 एंड कॉस्ट प्राइस आपका था 250. सो योर प्रॉफिट इज़ 325 माइनस 250, दैट इज़ इक्वल्स टू 75. Now you have to find out the profit percentage, and introduction video we already discussed that how you can find out the profit percentage and as well as loss percentage. So the formula of profit percentage is profit upon cost price into 100. So here our profit is 75. So in place of profit just write here 75. Your cost price is 250. So just write here 250 multiply by 100. So here is your solution. 75 upon 250 into 100. 0 0 cancel out. 25 3 जा होता है आपका 75 and 3 10 जा हो गया 30. So your profit percentage is 30%. Do it again. 0 0 cancel out. Here you have 75, 10 and 25. We know that 25 3 are 75. Okay, so here you have 3 and 10. So 3 10s are 30. So your answer is 30%. Now next question is question B. A refrigerator bought for rupees 12,000 and sold for rupees 13,500. आपका एक रेफ्रिजरेटर है जिसका कॉस्ट प्राइस था 12,000. आपने वो खरीदा था 12,000 में एंड आपने उसको सेल कर दिया 13,500 में. So students, again your cost price is less than selling price. और यू कैन से दैट योर सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन योर कॉस्ट प्राइस. आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है एंड कॉस्ट प्राइस कम है. इट मीन्स आपने चीज़ जो थी वो कम में खरीदी और ज़्यादा में बेच दी, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट. सो योर प्रॉफिट इज़ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो योर सेलिंग प्राइस इज़ 13,500 एंड कॉस्ट प्राइस इज़ 12,000. सो जस्ट सब्ट्रैक्ट 12,000 फ्रॉम 13,500 एंड यू विल गेट 1500. क्लियर? आपका जो प्रॉफिट है वो 1500 का है. अब अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो उसको हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? सो योर प्रॉफिट इज 1500, योर कॉस्ट प्राइस इज 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ जस्ट eliminate these two zeros from these two zeros. So now you have 15 upon 120 multiply by 100. Again 0 0 cancel out. 2 6 are 12, 2 5 are 10. Now you have 15 multiply by 5 and you know that 15 5s are 75 upon 6. Clear? 15 5s आपका होता है 75. So your solution is 75 upon 6. And जब आप 75 को डिवाइड करेंगे 6 से, then you will get 6 1s are 6. Now you have 15. 6 2s are 12. Now you have 3.0 and 6 5s are 30. So it means your answer is 12.5. When you divide 75 by 6, you will get 12.5. It means your profit percentage is 12.5%. Now check your another question.
A cupboard bought for rupees 2500 and sold at 3000. आपका जो एक कप बोर्ड है उसे खरीदा गया है 2500 में एंड देन उसे रीसेल किया गया है 3000 में. अगेन आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से. इट मीन्स आपका अगेन क्या हुआ है, प्रॉफिट. So here is your solution. Cost price is 2500, selling price is 3000. So your profit is 3000 minus 2500. It is 500. It means आपको profit हुआ है 500 का. Now your profit percentage is profit upon cost price into 100. So now put here 500. Your cost price is 2500. Again just eliminate these two zeros from these two zeros. So now you have 500 upon 25. ओके 25 1s are 25, 25 2s are 50 और यहाँ पे एक जीरो है. सो हेयर इज योर जीरो. सो योर आंसर इज 20%. ओके आपका आंसर कितना आएगा, 20%. नाउ लेट्स चेक योर पार्ट डी एंड योर पार्ट डी इज अ स्कर्ट बाउट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड एंड 150. आपकी एक स्कर्ट है जिसे 250 में ख़रीदा गया है और 150 में उसे सेल किया गया है. सो यहाँ आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो गया है. ठीक है, आपने चीज़ ज़्यादा में ख़रीदी है और बेची कम में है. ओके यहाँ पर आपको क्या हुआ है देन, लॉस. आपने चीज़ ज़्यादा में ख़रीदी और कम में सेल कर दी तो आपको लॉस ही होगा ना. सो योर कॉस्ट प्राइस इज़ 250 एंड सेलिंग प्राइस इज़ 150. नाउ लॉस इज़, अब आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस का फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. हम हमेशा ज़्यादा अमाउंट से माइनस करते हैं छोटे अमाउंट को. सो कॉस्ट प्राइस अब ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सो नाउ हियर योर कॉस्ट प्राइस इज 250 एंड सेलिंग प्राइस इज 150. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100. इट मीन्स उन्हें लॉस हुआ है 100 रुपीज़ का. अब 100 250 का कितना परसेंट होता है, lost upon cost price multiply by 100. So in place of loss just write here 100. Cost price is 250 and here is your 100. Now your formula is 100 upon 250 into 100. 0 0 cancel out. 25 4s आपका होता है 100 and 4 10s are 40. Okay, just check it again. 0 0 cancel out. 25 1s are 25. 25 4s are 100. Now here you have 4 and here you have 10. So 4 10s are 40. So your answer is 40%. Now let's check your question number 2 and your question number 2 is convert each part of the ratio to percentage. आपको क्या करना है, इन ratios को convert करना है percentage पे. Clear? So जब हम चीज़ों को percentage में convert करते हैं हम क्या करते हैं, multiply by 100. सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे. टोटल पार्ट्स आर 3 + 1 4. आपके जो टोटल पार्ट्स हैं वो 4 हैं. 4 कैसे हैं, जब आपके पास 4 पार्ट्स होंगे तभी तो आप उनको 3 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे. यस और नो, आपके पास 4 कैंडीज़ है, एक को आपने 3 दे दी, एक को आपने 1 दे दी, तभी तो उनका रेशो 3:1 होगा. क्लियर? तो यहाँ पर आपके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4. अब आपका जो फर्स्ट है इसमें क्या है, 4 के 3 पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं. क्लियर? 3:1 का मीनिंग क्या है कि टोटल 4 पार्ट्स में से आपने यहाँ पे लिए हैं 3 पार्ट्स और यहाँ आपने टोटल 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट ले लिए हैं, तभी तो इनका रेशो 3:1 है. क्लियर? सो 3:1 में 3 होगा आपका 4 पार्ट का 3 पार्ट 3/4. ओके, एंड 1 होगा आपका 4 पार्ट का 1 पार्ट. सो नाउ हियर यू हैव 3/4 एंड जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. ना 4 25 होता है आपका 100. सो आपका जो 100 है वो 4 से 25 टाइम्स हो जाएगा डिवाइड. नाउ यू हैव 3 and 25. सो 3 × 25 इज इक्वल टू 75%. 25 3 आपका होता है 75%. क्लियर? नाउ यू हैव 1/4 जो आपका 1 रेशो था, इसका रेशो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4 क्योंकि टोटल 4 पार्ट्स में से ये इंक्लूड कर रहा है आपका ओनली 1 पार्ट. सो नाउ योर फ्रैक्शन इज 1/4. नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100. क्लियर? So now 4 25s are 100, 25 1s are 25. So that is your 25%. First one is your 75% and another one is your 25%. और जब आप इनको टोटल करेंगे so 25 + 75 हो जाएगा आपका 100%. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2:3:5. सो आप इनको टोटल करेंगे 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10. क्लियर? सो टोटल आपके पास है 10 पार्ट्स जिसमें से यहाँ पे लिए हैं 10 में से 2, here 3 out of 10 and here 5 out of 10. Okay, so first one is 2 out of 10, that is here. Now multiply it by 100 for percentage.
0 0 cancel out, 2 10s are 20, so percentage is 20%. Next one is 3 upon 10, 3 out of 10, so it's 3 upon 10. Now multiply it by 100 for percentage. 0 0 cancel out, 3 10s are 30. Next one is 5 upon 10, here is your 5 upon 10. Now multiply it by 100, 0 0 cancel out, 5 10s are 50. So now your answer is 50%. And जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा आपका 100%. इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज़ 1:4 से आपका सिमिलर है बाकी के दो क्वेश्चन से. 4 + 1 होगा आपका टोटल 5. इट मीन्स फर्स्ट टाइम हमने 5 में से 1 पार्ट लिए हैं, ओके, एंड सेकेंड टाइम हमने 5 में से 4 पार्ट्स लिए हैं. क्लियर? So for first number your fraction is 1/5 and for the 4 that is your 4/5. Now multiply it by 100. Okay, 5 20s होता है आपका 100, so directly that is your 20%. Again 5 20s 100 and 24s 80, so that is your 180%. So that is your 80% and total is 100%. So again your answer is correct. Now next one, D part is 1:2:5. So sum of 2, 1 and 5 is 8. Clear? So this time it is 1/8, it's 2/8 and that is your 5/8. टोटल 8 पार्ट में से ये आपका 1 पार्ट इंक्लूड कर रहा है, ये 2 और ये 5. सो इनका फ्रैक्शन होगा 1/8, 2/8 एंड 5/8. Now again just multiply 1/8 by 100, 2/8 by 100 and 5/8 by 100. So when you divide 100 by 8, so you will get 12.5. Okay, here also, so your answer is 12.5. Next you have 2/8, so 2 1s are 8, 2 4s are 8. Now you have 1/4 multiply by 100 and आपका होता है 4 25s are 100, so here your answer is 25. आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अगेन 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 12.5 होता है आपका 100. आपका जब 8 को 100 आप जब 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.5 एंड जब आप 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपका आंसर हो जाएगा 62.5%. ओके, सो आंसर इज 62.5%. Now come to the next question and your question number 3 is the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. आपकी एक सिटी है जिसमें पॉपुलेशन थी पहले आपकी 25,000 एंड अब वह पॉपुलेशन हो गई है 24,500. ओके, सो आपको बताना है कि इनकी कितनी % पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई है. ओके, सो परसेंटेज निकालने से पहले हमें वो अमाउंट निकालना पड़ेगा जितनी पॉपुलेशन आपकी डिक्रीज़ हुई है. ओके, सो इनिशियल पॉपुलेशन इज़ 25,000. पहले जो आपकी पॉपुलेशन थी वो थी आपकी 25,000. फाइनल पॉपुलेशन इज़ 24,500 और अब की जो आपकी पॉपुलेशन है वो है 24,500. तो कितने % आपके डिक्रीज़ हुए हैं हम कर लेंगे 25,000 में से 24,500 को सब्ट्रैक्ट. ओके, सो 0 0 इट्स बिकम 10 10 - 5 5, ये आपका हो जाएगा 4. सो 4 4 0 एंड 2 2 0. सो आंसर इज़ 500. इट मीन्स आपकी टोटल पॉपुलेशन में 500% जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं. इतने लोग आपकी पॉपुलेशन से कम हो गए हैं. ओके, अब हमें निकालना है परसेंटेज. तो जो हमारा लॉस होता है तो हम उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. ओके, सो यहाँ पे कितने % का हमें लॉस हो रहा है, कितनी पॉपुलेशन कम हो रही है? 500. आपके यहाँ पे था कॉस्ट प्राइस. इस कॉस्ट प्राइस की जगह हम लिखेंगे कि टोटल पहले लोग कितने थे. क्लियर? अगर हम यहाँ पे डिक्रीजिंग का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो वो हम परसेंटेज किस रेशो में निकाल रहे हैं? पहले जितने लोग थे उनके रेशो में निकाल रहे हैं ना. तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे वो पॉपुलेशन जो आपकी पहले थी, ऊपर लिखेंगे जितनी पॉपुलेशन हो गई है कम, और अगर हमें इसके परसेंटेज में निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100. So now 0 0 cancel out. Here you have 500 upon 250 and you already know that 250 2 होता है 500. क्लियर? सो आपका आ जाएगा 2%. और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 500 मल्टीप्लाई बाय 250 था ना हमारा. 0 0 कैंसिल आउट, 25 2 50. अगेन यू हैव गॉट 2%. इट मीन्स आपकी पूरी पॉपुलेशन की 2% पॉपुलेशन क्या हो गई है? कम हो गई है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर क्वेश्चन नंबर 4 इज अरुण बाउट अ कार फॉर 3,50,000. अरुण ने 3,50,000 की एक कार खरीदी. नेक्स्ट ईयर द प्राइस
वेंट अप रुपीज़ 3,70,000 और नेक्स्ट ईयर जो उसके प्राइस हैं वो इंक्रीज़ होके 3,70,000 हो गए हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज़? तो आपको अब निकालना है कि जो कार का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। क्लियर? सो इनिशियल प्राइस था आपका 3,50,000, अब आपका हो गया 3,70,000। यू सब्ट्रैक्ट 3,50,000 फ्रॉम 3,70,000, सो यू विल गेट 20,000। इट मीन्स कार के जो प्राइस हैं वो 20,000 बढ़े हैं। ओके, सो इंक्रीज़ कितना हुआ है? 20,000। अब हमें इनका परसेंटेज निकालना है, तो हम 20,000 को रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे हम कार का पहले का प्राइस। ओके, हम इसके कंपैरिजन में इंक्रीजिंग निकाल रहे हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,50,000 ना कि 3,70,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो नाउ हियर यू हैव 1 2 3 4 1 2 3 4 3 zeros। ओके, 200 होगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 35। ओके, सो नाउ हियर यू हैव 200 डिवाइडेड बाय 35। 5 7s are 35, 5 4s are 20 and 0, so now you have 40/7. 7 5s are 35. Okay, your remainder is 5. So your denominator is 7, your quotient is here and your remainder is your numerator. So now your answer is 5/7%. आपके जो कार हैं उनके 5/7% प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। Now next question, question number 5 is I buy a TV for ₹10,000. ओके, उन्होंने क्या किया है? 10,000 रुपीज़ में एक टीवी खरीदा है एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और उस टीवी को उन्होंने 20% प्रॉफिट के साथ सेल कर दिया है। ओके, मतलब उन्होंने जितने में ख़रीदा था उसका 20% ज़्यादा में उन्होंने उसको सेल कर दिया है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? तो उनको कितने पैसे मिले हैं? सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ योर टीवी इज़ 10,000, प्रॉफिट मिला है उनको 10,000 का 20%। उन्होंने प्रॉफिट कितना लिया था? 20% ना, बट किसका 20%? जितने में उन्होंने वो चीज़ खरीदी थी उसका 20%। तो उन्होंने चीज़ खरीदी थी 10,000 में, तो हम यहाँ पे निकालेंगे 10,000 का 20%। सो 20% ऑफ 10,000 इज़ 20% की जगह हम लिखेंगे 20/100 एंड 10,000 का 10,000। सो व्हाट इज़ 20% ऑफ 10,000? 20 कैंसिल आउट, 20 hundreds are 2,000। इट मीन्स हमने क्या किया है? 2,000 में, इट मीन्स हमने 2,000 का प्रॉफिट लेके वो चीज़ सेल करी है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। सो योर सेलिंग प्राइस इज योर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो व्हाट इज योर कॉस्ट प्राइस? दैट इज 10,000 एंड यू गॉट द प्रॉफिट ऑफ 2,000 रुपीज़। So it means your selling price is 10,000 plus 2,000, that is 12,000 rupees. Okay? हमने जो आपका टीवी था वो खरीदा था 10,000 में, 2,000 का हमने प्रॉफिट लिया, तो हम टीवी को कितने में सेल करेंगे? 10,000 plus 2,000, that is 12,000. Clear? So the final selling price of your TV is 12,000 and the cost price of your TV is 10,000 and your profit is 2,000 rupees. Clear? So students, that's it for today. Okay? And other question we will discuss in the next video. Till then, just watch your video, try to understand it and do it in your notebook with proper handwriting. If you have any kind of confusion, then comment in the comment section. If you like this video, please like, subscribe and share. Thanks for watching it. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye.